ضرور پڑھیں سارے مولا کی ذات پہ. استدعا کرتا ہوں اکبر بھائی سے تشریف لائیں اور نذرانے کی جب پارگاہ معصوم اللہ صاحب کے سامنے پیش فرمائیں بآواز بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد علی محمد. والدین السلام. اللہم صلی علی محمد علی محمد. ہائے ویران گھراں وچ رووے بیوار کھڑی. ہائے ویران کدی میں ہاں بیماری ویرا کی میں تیرے کو لاواں. میں ہاں ویرا کی میں تیرے کو لاواں. وات کربل دی مدینے چوئے دشوار بڑی. ہائے ویران گھراں وچ رووے بیمار کھڑی. ہائے ویران گھراں وچ بر محمد وعلی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعتماد سے سید ببر عباس جعفری صاحب سے وہ تشریف لائیں اور نذرانے کی دربارگاہ معصومین علیہ صاحب کے سامنے پیش فرمائیں بآواز بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. درود بر محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. خالق کا نام بلند ہے سب مل کے بلند جواب دے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. حیدری. یا علی. محمد وعلی محمد وعلی صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مختصر سے وقت میں مولا حسین کی شان میں کلام آپ کی سماعتوں کی نظر. ایک بار مل کر درود بھیجیے گا محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جھکا ہے خانہ کعبہ
حسین کے آگے جھکا ہے خانہ کعبہ حسین کے آگے. پہلے 5 مصروں پر آپ کی پوری توجہ چاہ رہا ہے. منظر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا نور بھائی. جھکا ہے خانہ کعبہ حسین کے آگے اور نماز کرتی ہے سجدہ حسین کے. حسین کے آگے نماز کرتی ہے سجدہ حسین کے آگے. اگلے 3 مصروں پر توجہ چاہوں، دیکھیے گا. نماز کرتی ہے سجدہ حسین کے آگے اور عبادتوں میں مزہ کس طرح وہ پا کیسے سر جھکا نہیں سکتا حسین کے آگے کو پر دے گا. ارے تولا ولد ہے اگر وہ تجھے پسر دے گا، اگر وہ مانگنا تھا حسین کے اگر وہ مانگنا تھا حسین کے آگے. آپ کی حسین سماعتوں کی نظر ایک اور شعر دیکھے گا مبشر بھائی بکر صاحب کی نظر. اگر وہ مانگنا تھا حسین کے آگے اور وہ ملک شام میں بیٹھا تھا موت سے چھپ کر، وہ ملک شام میں بیٹھا تھا موت سے چھپ کر. ارے اسے حسین
خود نہیں آیا حسین کے یزید نہیں آیا حسین کے آگے درود پڑھو کا انور کو غم نہیں غاصب فتح کا بربر بلایا نہ جائے نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ مرسلین و اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی مخدومۃ کل زمان و معصومۃ فی القرآن بلقیس و حجرت و تقدیس الجلال آیت اللہ العظمی و زوجت آیت اللہ الکبریٰ ماشاءاللہ بنت القلم والنون وسرا بین الکاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الاعمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدا ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا ولعن اللہ تعالی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون
सलवात। दुआए खाल के लम यज़िल हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूलियत अता फरमाए। आप जितने भी हाज़रीन व हाज़िरात, मोमिनीन व मोमिनात जितने कदम चल के आते हैं रसूल की बेटी, आपका पुरसा कबूल व मंजूर फरमाए। इस अदारा के मुंतज़मीन, इस अदारा के ओहदेदारान, इस बारगाह के जितने भी नौकर हैं, मेरा मालिक उन तमाम की कोशिश सही काविश को कबूल व मंजूर फरमाए। बादशाह हुसैन हमें आखिरी सांस तक अकीदा हक पे इस्तकामत नसीब फरमाए। हमें विलायत अली पे जिंदा रहना और विलायत अली पे मरना की तौफीक अता फरमाए। वारिस के ज़हूर में जल्दी फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुंचाएं। सहारा दुरूद कर लें बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो भी बीमार हैं बिलखसूस जनाब शेख खलीफ साहब, सोहेल रिजवी साहब, इसके अलावा जो जो मोमिनीन बीमार हैं आप दुआ फरमाएं। मौला ज़िक्र का सदका उन्हें मुकम्मल सेहत अता फरमाए। इजाज़त है गुफ्तगू सिलसिला गुफ्तगू यकीनन अज़हान आलिया में महफूज होगा। हो रही है सूरह अल-माइदा की इस आयत पे इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, बेशक अल्लाह वली है, उसका रसूल वली है और वो वली हैं जो हालत रकूब में ज़कात। को अली नबुव्वत, खिलाफत, रिसालत, इमामत और विलायत, ये वो ओहदे हैं जो बंदे नहीं देते। कोई बंदा अपनी मर्जी से नबी नहीं बन सकता, कोई बंदा अपनी मर्जी से खलीफा नहीं बन सकता, कोई बशर अपनी मर्जी से रसूल नहीं बन सकता। जैसे ये सब अपनी मर्जी से नहीं बना जा सकता, तो यही कानून कुदरत है, कोई बंदा अपनी मर्जी से इमाम भी नहीं बन सकता। नबी भी अल्लाह बनाता है, रसूल भी अल्लाह बनाता है, खलीफा भी अल्लाह बनाता है, इमाम भी अल्लाह बनाता है, वली भी अल्लाह बनाता है। लेकिन इन सारे ओहदों में से जो सबसे अफजल ओहदा है वो विलायत का है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ लफ्ज कह रहा हूं, खिलाफत, नबुव्वत, रिसालत, इमामत, इन सब से जो अफजल होता है वो विलायत है। आप उससे दलील मांगे, मैं दलील देता हूं। पूरे कुरान में अल्लाह ने अपने आप को खलीफा नहीं कहा, जुबान जिसके पास है। पूरे कुरान में अल्लाह ने अपने आप को नबी नहीं कहा, रसूल नहीं कहा, ये कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, मैं भी वली हूं। ओहदा विलायत इतना बड़ा है कि इसमें ला शरीक खुद शरीक हो रहा है। और एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूंगा, जो आज झगड़ा चल रहा है कि ना ये फलां को नहीं मानते, वो फलां को नहीं मानता। झगड़ा मैं मजहब अहले बैत की बुनियाद पर पढ़ने लगा हूं। हमारा झगड़ा उम्मत मुसलमान के दूसरे फिरकों से ये है, हम जात के मानने पे झगड़ा नहीं करते, हम ओहदे की वजह से झगड़ा करते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपने जिसको मानना है आप माने, जमहूरियत है, कोई कह दो बंद, लेकिन उसको वो ना माने जो वो है नहीं। मैं कुलिया देने लगा हूं, मज़हब अहले बैत का भी कानून देने लगा। हमें कोई एतराज नहीं है, शख्सियात का एहतराम करें। किसी शख्स का एहतराम करने में मैं कौन होता हूं? आप एहतराम करना चाहे मैं रोक दूं, आप एहतराम करें। शख्सियत के एहतराम से शिया मना नहीं करते। आप उन्हें वो ना कहें जो वो ना है। फरौन बादशाह बना रहता, खुदा कुछ ना कहता। कितने बादशाह थे, कितने सुल्तान थे, कितने तख्त पे बैठने वाले थे, क्या अल्लाह ने सब पे अजाब भेजा? फरौन के बादशाह होने की वजह से अल्लाह नाराज नहीं हुआ। फरौन ने खुद को अल्लाह कहलवाना शुरू कर दिया,
خدا نے کہا جب تو وہ ہے ہی نہیں جو کہلوا رہا ہے. اور آج ہر بندہ فرعون پہ لعنت کرتا ہے, نمرود پہ لعنت کرتا ہے, شداد پہ لعنت کرتا ہے, اور آج تک کبھی کسی نے دیوار پہ لکھا ہو فرعون پہ لعنت, کوئی ایف آئی آر نہیں. فیس بک پہ سٹیٹس اپلوڈ کریں نمرود پہ لعنت, کوئی پرچہ نہیں. شداد پہ لعنت, کوئی اختلاف نہیں کرے گا, سب نیچے لکھیں گے بے شمار ہم بھی ساتھ ہیں. بھئی فرعون, نمرود اور شداد پہ لعنت کس بات پہ؟ بادشاہ تھے اس وجہ سے؟ کہتے نہیں, انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کہلوایا تھا. اب میں دیکھوں گا کون بندہ ہے جو خطابت جا کے سن رہا ہے. جو ہو نہ اور بن بیٹھے وہ لعنتی ہوتا ہے. جو ہو نہ بن بیٹھے لعنتی ہوتا ہے. ہو نہ بن بیٹھے لعنتی ہوتا ہے. فرعون اللہ تھا نہیں, بن بیٹھا, لعنتی ہے. غلام محمد قادیانی نبی تھا نہیں, بن بیٹھا, لعنتی ہے. اللہ ہو نہ بن بیٹھے لعنتی ہوتا ہے. نبی ہو نہ بن بیٹھے لعنتی ہوتا ہے. امام ہو نہ بن بیٹھے. ہونا بن بیٹھے لعنتی, خلیفہ ہونا بن بیٹھے لعنتی, امام ہونا بن بیٹھے لعنتی, حجت ہونا بن بیٹھے لعنتی. اگلا جملہ بھی پڑھوں گا اور چہرے بھی پڑھوں گا. سید ہونا بن بیٹھے. ہاسپٹل جاؤں اور ڈاکٹر کی سیٹ خالی ہو, انتظار کرنے کے لیے اس کی کرسی پہ بیٹھ جاؤں اور مریضوں سے کہوں مجھے ڈاکٹر کہو. چلے میں اپنی مثال تو اس لیے دے رہا ہوں نا کہ بندہ کسی کی مثال دے تو بندے ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ہماری مثال کیوں دی. میں تھوڑی دیر لیٹ ہو جاؤں اور ممبر پہ کوئی اور بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ جی آپ مجھے خطیب کہیں, مجھے ذاکر کہے, لیکن مجھے پڑھنا نہیں آتا. ممبر پہ بیٹھ جائے اور آ کے کہے دیکھو صاف بات ہے مجھے تقریر کرنی نہیں آتی, اگر کہیں بھولوں تو مجھے صحیح کر دینا. اشارے سمجھتے جانا. اگر کہیں میں کوئی کچھ غلط پڑھوں, شبدین بھائی دعا فرمائے کہ کچھ غلط پڑھوں مجھے ٹھیک کر دے, اور پھر ممبر پہ بیٹھ کے دعویٰ کر دے کہ اگر کوئی اسلام کے بارے میں پوچھنا چاہتا تو پوچھو. پیچھے سے بندہ اٹھ کے کہے کہ آپ بتائیں محمد والے محمد پہ درود قرآن سے کیسے ثابت, وہ چپ ہو جائے. کہ بلا جعفری صاحب اٹھے اور اس بندے سے کہے بیٹھ جا, یہ جواب مجھ سے پوچھ لینا. اب انہوں نے مجھے نہیں بچایا, انہوں نے ممبر کی عزت کو بچایا. جعفری صاحب نے اٹھ کے میری ذات نہیں بچائی, ممبر کی عزت بچائی ہے. کہ وہ بندہ پتہ نہیں کون ہے, کہاں سے آیا, کل کو کہے گا جی امام بارگاہ دعائے زہرا میں گیا تھا, وہاں تو ممبر پہ ہر کوئی بیٹھ جاتا ہے. تو غلطی تو اس بندے کی ہے کہ یہ بیٹھ گیا ہے, لیکن کم از کم میں ممبر کی عزت تو بچاؤں. انہوں نے مجھے نہیں بچایا. اشارہ سمجھنے شروع کر جائے تو میرا خیال ہے کہ خطیبوں میں پابندیاں لگنی ختم ہو جائیں گی. اگر میری قوم اشارے سمجھنی شروع ہو جائے, انہوں نے مجھے نہیں بتایا, ممبر بچایا ہے. اس لیے جب سارا مجمع چلا جائے گا میں جعفری صاحب کو اکیلا کر کے کہوں گا شاہ جی اگر آج آپ انہوں نے مجھے نہیں بچایا, ممبر ہو جائے. غلطی بیٹھنے والے کی بیٹھ گیا,
जियो तौहीन मिंबर की तो ना हो। जियो लिहाजा पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम के जितने मानने वाले हैं, झगड़ा जात मानने पे नहीं, झगड़ा उसे वो मानने पे है जो मेरे रसूल ने मक्का में खड़े होकर कहा कि बुतों को ना मानो। जियो वो पत्थर के बुत थे, क्या उनका नबी के साथ कोई मुकाबला था? कहां अल्लाह, कहां पत्थर की मूर्ति? अल्लाह का स्टेटस ही नहीं है कि अल्लाह का मुकाबला पत्थर के बुतों के साथ हो। रसूल ने ये नहीं कहा कि इस वजह से, रसूल ने कहा अगर वैसे घरों में रख रहे हैं ना वैसे रख लो, सजावट के तौर पे रख रहे हैं रखो, वाह वाह, ऐसे डेकोरेशन पीस रखना है तो रखो, इन्हें वो ना कहो जो ये है नहीं, इन्हें खुदा ना कहो, ये खुदा नहीं है। उन्होंने कहा क्यों, ये खुदा क्यों नहीं है? रसूल ने कहा क्यों नहीं खुदा मानते? मेरे अल्लाह को खुदा मानो, वो सच्चा है। अब मैं कुफर का जहन बताने लगा हूं और आपने इस मक्के में नहीं रहना, मिसाल मक्के की दूंगा, बंदे कहीं और से पकड़वाऊंगा। सियाना तो इसे कहते हैं ना। अब सुन के जाफरी साहब के लेक्चर, इतना सियाना तो मैं हूं कि बात करनी भी कुछ नहीं और कर भी देनी। तो अब इशारा जो है ना, मैं इशारा कोई करने लगा हूं। अब मिसाल से बाप ने कहा कि इन्हें वो ना मानो जो ये है। मिसाल से बाप ने कहा अच्छा तुम क्यों नहीं मानते? उन्होंने कहा जी मानते इसलिए ना, वरना हमें कोई नहीं, बाप दादा मानते। आज इन्हें छोड़ देंगे ना, कल को दुनिया कहेगा अच्छा तुम्हारा बाप गलत था, दादा गलत था। अच्छा बड़े लोग इस वजह से भी अकीदा ठीक नहीं करते कि हमारा बाप दादा ऐसे ही पढ़ता था। बड़े बंदों का अकीदा इसी वजह से ठीक नहीं होगा, इसी बात में पक्के हैं कि जनाब अगर हमने ऐसा नहीं कर लिया तो बाप दादा ने, भाई बाप दादा आईफोन यूज करते थे, वाह भाई वाह वाह वाह, उस दौर के लोग ऊंटों पे बैठते थे। तुम्हें खुदा ने दे दिया एक एक हदीस सुनने के लिए कहां कहां से जाके मौलवी ढूंढने पड़ते थे। अब तुम्हारी उंगलियों के नीचे दुनिया की लाइब्रेरी है। वाह वाह वाह, पहले हवाला, अब ये बहुत पुरानी बात नहीं है कि मैं कोई बहुत पुरानी 20वीं की बात कर रहा हूं। बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, वो मेरी तायद करेंगे कि महमूद गिलानी साहब को बहुत पीछे नहीं, कुछ 30-40 साल भी पीछे चले जाए, 20 साल भी पीछे चले जाए, मिंबर पे बात होती थी, हवाला खतीब को देना पड़ता था क्योंकि किताब मौलवी के पास होती थी। किताब देखने के लिए मौलवी के घर जाना पड़ता था कि जी मुझे किताब दिखा दे। अब किताब के लिए मौलवी की जरूरत नहीं है, लाइब्रेरियां तुम्हारी उंगलियों के नीचे आ गई। लिहाजा झगड़ा इस बात पे हो रहा है कि रिसालत इमाम ने कहा क्यों नहीं इन्हें छोड़ते? उन्होंने कहा बाप दादा। रसूल ने कहा इनके झूठे होने की दलील बताऊं, फिर इशारा देने लगा हूं, इशारा समझना। रसूल ने कहा इनके झूठे होने की दलील बताऊं, यावर भाई ने कहा क्या दलील है? रसूल ने कहा देखो सबसे बड़ी इनके झूठे होने की दलील है इन्हें बुलाओ तो आते नहीं। तुम्हें वो मुश्किल हो, तुम्हें मदद के लिए बुलाओ ये आते हैं। सदा जी वाह वाह, तुम कुएं में गिर रहे हो और बुत घर में पड़ा हो, बुलाओ नहीं आते, या तो नबी के बुलाने पे नहीं आते। क्या कहने शख्सियतों पे नहीं है, झगड़ा ओहदों पे है। बेशक बात यहां से शुरू हुई थी। आप किसी को मानना चाहे माने, लेकिन खिलाफत, नबूवत, रिसालत मेरिट दे दिया खुदा ने विलायत का। कम अज कम खुदा ने कहा अपने ज़हन में रखना, स्टेटस विलायत का ये है, मैं वली हूं, मेरे साथ उसे मानना। क्या कहने, वाह वाह, कि इधर विलायत मेरे साथ जुड़ी है, मैं वली हूं, रसूल वली है। कल मैंने आयत पढ़ी थी आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। आज बड़ी खूबसूरत आयत आपके अज़हान को हदिया करने लगा। खुदावंद मुताल इरशाद फरमाते सूरह मुबारका तौबा, बिस्मिल्लाह, सूरह मुबारका तौबा है और ये कुरान की वो वाहिद सूरत है अकलीम भाई जिसके आगाज में बिस्मिल्लाह
नहीं। इस सूरत को सूरह बरात भी कहते हैं। वाह वाह। बिजारी वाली सूरत, नफरत वाली सूरत, जिसमें नफरत है, बिजारी का हुक्म है, जिसमें तबर्रा का हुक्म है। आप किसे कहते हैं? तबर्रा। तबर्रा गाली देने का नाम नहीं, किसी से बेजार हो। कि भाई हम इससे पहले खुदा ने पूरे कुरान की काफिरून सूरत से भी पहले बिस्मिल्लाह है, मुनाफिकून से पहले भी बिस्मिल्लाह, सूरह बरात से पहले खुदा ने बिस्मिल्लाह रखी नहीं। उसकी दो वजूहात है, मैं दोनों वजह पढ़ देता हूं। पहली वजह यह कि बिस्मिल्लाह में रहमान और रहीम का तज़किरा सख्त हुआ है कि खुदा चाहता है कि जहां तबर्रा हो वहां रहमत नहीं होनी चाहिए। रहमान और रहीम की सिफ्त का ताल्लुक जो है वो तबर्रा के साथ नहीं जुड़ेगा। ये सूरह मुबारक खुदा ने नाजिल किया और इसकी मैंने तीसरी आयत आपके सामने पढ़ता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जफर भाई जो ज़बान खड़े हुए बिठा ले। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद आगे बैठे वो आगे आ गए, जो पीछे बैठे वो पीछे बैठे, क्योंकि हमारी 1400 साल से लड़ाई इसी बात पे है कि आए बाद में थे, बैठ आगे गए। जो बाद में आए वो बाद में बैठे, जो पहले आए वो पहले बैठे। बात ज़हन में अज़ान मिनल्लाहि व रसूलुहु, अज़ान है। बड़ी खूबसूरत आयत और बड़ा खूबसूरत तर्जुमा, और कोशिश करूंगा कि आज इस आयत की किसी गहराई में बताए। अज़ान है अल्लाह की, अल्लाह की और उसके रसूल की तरफ से अज़ान है हज अकबर के दिन। इन अल्लाह बरी मिनल मुशरिकीन, खुदा मुशरिकों से बरी हो गया। सूरह मुबारक तौबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत मुबारक तौबा जाकर कुरान की तफसीर उठाइएगा, मुफस्सरीन से पूछिएगा। सूरह मुबारक बरात, सूरह मुबारक तौबा का शान नज़ूल क्या है? 8 हिजरी है ग़ज़वा तबूक। ग़ज़वा तबूक के बाद 9 हिजरी में खुदा ने ये सूरत भेजी। 10 हिजरी में रसूल ने अपनी जिंदगी का आखिरी हज करने के लिए मक्का जाना था। उससे पहले इस सूरत को खुदा ने उतार दिया। क्यों उतारा था? क्योंकि मक्का में रिसालत में आपने आखिरी हज करने जाता था। मक्का में कुफार अल्लाह के घर का तवाफ करते थे, लेकिन अपने मजहब के मुताबिक। ये कांधों में बुतों को उठाए हुए होते थे, बगलों में बुतों को लिए हुए होते थे, बगैर लिबास के नाचते गाते हुए अल्लाह के घर के गिर्द घूमते थे। खुदा ने कहा मैं गवारा नहीं करता, इधर मेरा मोहम्मद तवाफ कर रहा हो, उधर अरब के काफिर तवाफ कर रहे। खुदा ने सूरत में सूरह मुबारक बरात में उनके लिए नफरत का हुक्म देके कहा कि मुशरकीन मक्का को ये सूरत सुनाओ और इनसे कहो कि हदूद हरम को छोड़ दो, क्योंकि हज करने के लिए मेरा नबी आ रहा है। शान नज़ूल तमहीद में मेरा साथ दीजिएगा। सूरत पूरी की पूरी आगे रसूल ने एक शख्स को सूरह मुबारक तौबा दे के भेज दिया कि जाओ मक्का के मुशरिकीन के दरमियान में खड़े होके। ये सूरत उनको पकड़ा के नहीं आनी, पढ़ के आनी है, उनके घरों में फेंक के नहीं आनी, बिल्कुल उनके दरमियान खड़े होके मुशरिकों के। और सूरह मुबारक का बरात में अल्लाह नफरत उनसे बेजारी कर रहा है, इनके दरमियान खड़े होके इनसे बेजारी का हुक्म सुना के पूरी जिम्मेदारी के साथ लफ्ज कहने लगा। बंदा चल पड़ा मदीना से, इधर से वो आधे रास्ते में पहुंचा था, या जनाब जबरील आए, आके कहा खुदा कह रहा है इस बंदे को वापस बुलाए। सूरह मुबारक तौबा की तबलीग के लिए इसे न भेजे। वो सूरत लेके चला गया, जबरील ने कहा खुदा कह रहा है इसे न भेज, तबलीग करनी है मुशरिकीन में खड़े होके। कहीं आगे से कोई उसे ये ना कह दे कल तक तो तू भी पूछता था।
सूरह मुबारक तौबा के शान नज़ूल पढ़ रहा हूं, जो अली के नौकर बैठे। कल तक तू पूछता रहा आज किस लहजे में जा रहा है, रोक उसे भेज जिसने आज तक बुत को सजदा। मैंने कहा था कि मैं 2 वजह पढ़ूंगा बिस्मिल्लाह ना होने की। पहली वजह बेजारी का हुक्म था, जहां तबर्रा हो वह रहमान नहीं होता। दूसरी वजह पढ़ने लगा सही है। दूसरी वजह ये थी क्योंकि अली ने तबलीग करने के लिए जाना था। खुदा ने कहा जब खुद बिस्मिल्लाह जा रही है तो बिस्मिल्लाह लिखने की जरूरत ही क्या? जब बिस्मिल्लाह खुद जा रही है तो अब बिस्मिल्लाह लिखने की क्या जरूरत है? सूरह मुबारक तौबा की तबलीग के लिए अमीर अल मोमिनीन को भेजा। खिताबत में लफ्ज नहीं होते, मोड़ होते। जो साथ देता है वो मोड़ को समझता है, वो खिताबत को समझता है, जो खिताबत को समझे उसे तकरीर समझ में आती है। जो पहला गया था वो लिखी सूरत लेके गया था। अली ने किसी चमड़े पर सूरह तौबा नहीं लिखी, बोलता हुआ कुरान चुप कुरान लेके चला। अली का लहजा खुद कुरान था, खुद अमीर अल मोमिनीन अल्लाह के हुक्म के साथ। क्या कहते हैं? अब इस आयत की तफसीर होने लगी है। अज़ान मिन अल्लाह व रसूल, अज़ान है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से। इसका मतलब रसूल के लिए अज़ान का लफ्ज नहीं है, ये अज़ान है अल्लाह की तरफ से, रसूल की तरफ से। अब अज़ान कौन था ये मैं वाक़े के बाद सुना। अमीर अल मोमिनीन मक्का पहुंचे, मुशरकीन मक्का, पूरी जिम्मेदारी के साथ अल्फाज कह रहा हूं, 2.5 लाख मुशरकीन, 2,500 नहीं, 2.5 लाख मुशरकीन मक्का अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे थे बुतों के साथ, बगैर लिबास के, तौहीन अमेज तरीके से। अमीर अल मोमिनीन तन्हा मक्का पहुंचे। अली ने हर जंग तलवार से नहीं लड़ी। तुमने क्या समझा है कि हमने ताकत की वजह से अली को माना है? हमने अली के जोर की वजह से अली को माना है। अमीर अल मोमिनीन मक्का पहुंचे, 2.5 लाख मुशरकीन क्या बात, अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे थे। अली मक्का के ऊंचे टीले पे जाके खड़े, अली ने यूं नीचे 2.5 लाख मुशरकीन को अल्लाह के घर का तवाफ करते देखा। 2.5 लाख मुशरकीन अल्लाह के घर का तवाफ करने का। जिसके रगों में अली है ना, बेसाख्ता बोलेगा। मक्का के ऊंचे टीले पे लेगा, उसको रुक जाओ। इतना कहना था, किताबें कहती जिसका कदम उठा था नीचे नहीं हुआ, जिसके हलक से सांस ऊपर आ रही थी क्या बात है, वो हलक में रुक गया, जिसकी आंख खुली थी जब मैंने कहा रुक जाओ वहीं पे करो। अल्लाह ने फरमाया खुदा ने मुझे रसूल के हुक्म के साथ यहां भेज दिया, मैं तुम्हें कहने के लिए आया छोड़ो हदूद मक्का। क्या बात है, अगले साल हमारा नबी हज करने के लिए आया, खबरदार आज के बाद कोई काफिर हदूद हरम में नहीं आएगा, और आज तक नहीं आया। ये पहला जुमला अली ने फरमाया, अल्लाह ने हुक्म भेज दिया है, जो आते रहे आते रहे, क्या कहना? आज के बाद ना आना। अल्लाह ने रसूल ने मुझे भेजा है। जुमला तब्दील करता हूं, इन्ना वलियुकुमुल्लाह ने रसूलहू को कहा, उसने आमनुल्लज़ीना को भेजा। और तब्दील करूं, आतिउल्लाह ने आतिउ रसूल से कहा, उसने औलिल अम्र को भेजा। और आसान करूं, ला इलाहा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहा, उसने अली और वलीउल्लाह को भेजा। तुम में से कोई हदूद हरम में दाखिल होगा, छोड़ो। क्या कहने, वाह वाह। उस दिन का अली का कहा हुआ आज तक कोई काफिर मक्के नहीं आया। अमीर अल मोमिनीन ने कहा था कि आज के बाद तुम में से कोई भी हदूद हरम में दाखिल नहीं होगा। जहां अरब पूरे में रहना रहो, अल्लाह के घर के करीब ना भटकना, अल्लाह के घर के करीब ना आना, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म भेज दिया कि आज के बाद काफिर नहीं जाएंगे। 2.5 लाख के दरमियान अकेले, बगैर तेज, बगैर तलवार, बगैर नेज़े, बगैर भाले के अली ने मुशरिकीन मक्का को अल्लाह के घर के तवाफ से रोक दिया। जब अली वापस आ गए थे तो चंद बंदों ने अली के पास आके कहा, यार
2.5 लाख मुशरक थे, तुझे डर नहीं आया, तुझे खौफ नहीं आया, तुझे घबराहट नहीं हुई? तू 2.5 लाख मुशरकीन के दरमियान खड़ा होके अगर तुझ पे कोई हमला कर देता, अगर कोई तुझ पे कत्ल कर देता। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? खुदा कुरान में कहता है, हमने मूसा को फिरौन के दरबार में भेजा था, मूसा ने फिरौन के दरबार में जाके अल्लाह की तौहीद की तबलीग की। फिरौन ने कहा, मूसा निकल जा मेरे दरबार से। कुरान कहता, मूसा थर थर कांपा, मूसा थर थर कांपा। फरमाया, जो एक फिरौन के आगे डर गया उसे नबी कहते हैं, जो 2.5 लाख फिरौनों के दरमियान डटा रहा उसे अली कहते हैं। हैदर 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 छोड़ो मक्का। अगली सदर पढ़ो जो अली का नौकर। अली ने फरमाया, मक्का छोड़ो, वरना तुम्हारी वही हालत करूंगा जो मैंने फतह मक्का पे तुम्हारे खुदाओं की थी। अमीर अल-मोमिनीन सूरह मुबारका बरा सूरह मुबारका तौबा की तबलीग करने के बाद अगर खुदा कहता है अजान बन के गया था अली। मेरे चौथे इमाम से किसी बंदे ने पूछा था, अल्लाह ने कुरान में जो अली के इस्म लिखे उसमें कोई मखसूस इस्म बता। मेरे चौथे इमाम ने बताया, अल्लाह ने कुरान में सूरह तौबा में हमारे दादा अली को अजान कहा है। आप नहीं समझे, मैं खुद मौला अली का जुमला पढ़ता। मौला अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया था, अना अज़ानुल्लाह फी दुनिया व मुअज़्ज़िनु फिल आखिरह। मैं दुनिया में अल्लाह की अजान हूँ और आखिरत में अल्लाह का मुअज़्ज़िन हूँ। मैं दुनिया में अल्लाह की अजान हूँ और आखिरत में अल्लाह का मुअज़्ज़िन हूँ। बंदों के चेहरे अभी तक वैसे नहीं खिले जैसे मुझे फ़ज़ाइल अली पे खिलते हुए चेहरे चाहिए था। अली ने फरमाया है, मैं अल्लाह की अजान हूँ, मैं अल्लाह की अजान हूँ, मैं अल्लाह की अजान हूँ। और वही अली मिंबर कूफा पे अपने सीने पे हाथ रख के कहता है, अना सलातुल मोमिन, मैं मोमिन की नमाज हूँ, मैं मोमिन की नमाज हूँ। उधर कह रहा है मैं अल्लाह की अजान हूँ, इधर कह रहा है मैं मोमिन की नमाज हूँ। इसका मतलब है कि मस्जिद से हय्या अला सलाह कहा जाए या हय्या अला इफ्तार कहा जाए तो समझो कि अली की तरफ बुलाया जा रहा है। हय्या अला सलाह भी अली है, हय्या अला फलाह भी अली है, क्योंकि अली ने कहा था, मैं अल्लाह की अजान हूँ, मैं अल्लाह की अजान हूँ। सर उठो, मैं अली वलीउल्लाह पढ़ो। जब अल्लाह की अजान अली के बगैर नहीं होती तो मोमिन की नमाज अली के बगैर। जब अल्लाह की अजान हैदर 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 जब अल्लाह की जब अल्लाह की अजान ज़फर भाई अली के बगैर नहीं होती। और वही अली जो कह रहा है कि मैं अल्लाह की अजान, वही अली कह रहा है, अली शादी मैं मोमिन की नमाज। अना अज़ानुल्लाह फी दुनिया व मुअज़्ज़िनु फिल आखिरह। मैं दुनिया में अल्लाह की अजान हूँ और आखिरत में अल्लाह का मुअज़्ज़िन हूँ। अली कह रहे हैं, अजान किस लिए दी जाती है? नमाज के लिए। यहाँ दुनिया में अजान है अली, समझ में आता है। आखिरत में मुअज़्ज़िन कैसा? पढ़ूंगा वही जुमला, अब देखूंगा फिर चेहरे पढ़ूंगा। मुझे पता है जब अल्लाह मौला हुसैन मिंबर पे बिठाते हैं ना तो 3 आंखें दे देते हैं, 2 ये 1 ये। मुझे हुसैन की माँ की कसम, मुझे खिलता हुआ चेहरा भी नजर आ रहा है, हल्का सा परेशान भी नजर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सोचने वाला भी नजर आ रहा है। मुझे यहाँ को मैं उंगली के इशारे से बंदों की तरफ इशारा कर दूंगा, 30% कौन खुश हुआ है, 50% कौन खुश हुआ है, 70% ठंड किसे महसूस हुई है, 100% कौन मुतमिन होकर बैठा है। अब मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ। अली ने फरमाया है कि मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह का मुअज़्ज़िन बन के उठूंगा। एक बंदे ने आके पूछा, या अली क़यामत वाले दिन तो मुअज़्ज़िन होगा, अजान के लिए मुअज़्ज़िन खड़ा
होता है जब क़यामत वाले दिन नमाज ही कोई नहीं होनी, फिर अजान कैसी, जब अजान ही कोई नहीं होनी फिर मुअज्जिन कैसा। अल्लाह ने कहा बैठ मेरे सामने, मैं तुझे बताता हूँ क़यामत वाले दिन कौन सी अजान होगी, क़यामत वाले दिन कौन सा मुअज्जिन होगा। अली फरमाते क़यामत वाले दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर कोई अपने अमाल की गठरी उठा के घबरा के फिर रहा होगा कि जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा। अली फरमाते जिसके पास हमारी विलायत होगी उसका चेहरा खिला हुआ होगा, जिसके पास मेरी विलायत नहीं होगी उसका चेहरा पूछा हुआ होगा। अली फरमाते पुले सरात के ऊपर मेरा गुलदस्ता अजान लगेगा और मुझे अल्लाह अजान के लिए बुलाएगा, उसका कौन सी अजान होगी। अली फरमाते मैं गुलदस्ता अजान पे जाके आलम महशर में नबियों की उम्मतों के सामने ये अजान दूंगा, अला लानतुल्लाह अलल्लज़ीना कज़्ज़बू बिविलायतिना वस्तग़फ़िर हक़्क़ना, लानत उन बंदों पे जिन्होंने मेरी विलायत को छुपाया और मेरे हक को छुपाया। लानत अल्लाह की उन बंदों जिन्होंने मेरी विलायत को छुपाया। ना मानने वालों से बात नहीं हो रही, छुपाने वालों से, छुपाने वालों से बात हो रही। मेरी विलायत को छुपाया और मेरे हक को खाया। इसमें तो कोई एतराज नहीं, ये हदीस तो अज़बर है तुम्हें, या अली अंत कस्सीमुन नार वल जन्नत, इसमें तो कोई एतराज नहीं। ऐ अली तू जन्नत और दोज़ख तकसीम करेगा। कैसे तकसीम करेगा अली? जब दुनिया में अली की तलवार चलती थी ना तो यूं नहीं चलती थी कि सारी गर्दनें कटती थी, एक काटती थी, एक छोड़ती थी, चार काटती थी, दो छोड़ती थी। तो सबने माना है अली की तलवार गर्दन पे रुकती थी, शजरे पड़ती थी, 70वीं पुश्त में भी अगर कोई मोमन आना होता तलवार नहीं चलती थी। हर बंदा अली ने उसकी वजह से नहीं छोड़ा। फिर इशारा करने लगा, बहुत हसास इशारा देने लगा और मुझे पक्का यकीन है 6 या 7 बंदे इशारा समझेंगे। देने लगा आज बंदे कहते हैं उस शेरी ने क्यों नहीं मारा, उस शेरी ने, और बड़े बड़े बाप बेटों की वजह से बच गए। हुसैन इज्जत दे, अली की मां इज्जत दे, जो समझ गया है हुसैन की मां तुम्हें किसी का मोहताज न कर। बड़े बड़े बाप बेटों की वजह से उसे मार देते, सदा से मार देते, किसी को मार देते, किसी को कत्ल कर देते। अली के सिपाही कहां से आते? गर्दने छोड़ के अली की तलवार, जैसे अली ने जमाने में गर्दने छोड़ छोड़ के तलवार चलाई है। अली फरमाते हैं मैं जन्नत और दोज़ख ऐसे नहीं तकसीम करूंगा कि मैं अमाल देखूंगा और अमाल के बाद अच्छा तेरे अमाल में ये नहीं है तो ये करूंगा। अली फरमाते हैं मैं पुले सिरात में जन्नत और दोज़ख के दरमियान खड़ा हो जाऊंगा, सिर्फ इतना कहूंगा जहन्नम ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा, ये तेरा है। सरकार का आपसे गुजारिश है कि सलवात पढ़ते हुए खड़े हों और जितना आगे आ सकते हैं उतना आगे आ जाए। या कायम आले मोहम्मद, और आगे आ जाए, जितना आगे आ सकते हैं आगे 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 जाओ। माशाल्लाह, क्या कहने वाह 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 वाह। नारे
जन्नत और दोज़ख तकसीम करने वाला हसनैन का तस्वुर क़यामत ही गलत है मौलवियों का। अब इतने चैनल हो गए, इतने चैनल हो गए, सोशल मीडिया में भी चैनल, एक आध मौलवी तलू होता है और वो अपनी तस्वुर क़यामत, जी क़यामत वाले दिन पता क्या होगा, उम्मतें खड़ी होंगी, बहुत लंबा दिन होगा, बड़ी गर्मी होगी, बड़ा नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, ना तख्त लगेगा, तख्त पे अल्लाह बैठेगा और वो जिस कुर्सी में बैठेगा ना वो अल्लाह के वजन से, मैं गलत नहीं की कसम ये तस्वुर क़यामत बच्चों को दिया जाता है। किताबें छप गई क़यामत का मंजर, मरने के बाद क्या होगा, जिंदगी का नहीं पता, मरने के बाद क्या होगा। तस्वुर क़यामत, तख्त होगा, तख्त पे अल्लाह बैठेगा, अल्लाह सामने उम्मतें खड़ी होगी, यूं थर थर कांपेंगी, अल्लाह पूरे जलाल में आएगा और जलाल में आके अल्लाह उम्मतों के फैसले करेगा। ये हर एक ने तस्वुर क़यामत लिख दिया। इसकी सबसे ज्यादा तबलीग मौलवी सरार ने की थी। तस्वुर क़यामत, ये क़यामत है तस्वुर, ये तस्वुर। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम 20 साल हो गए बाबा जी इस मिंबर पे नौकरी अदा कर, दुख देखे, तकलीफें देखी, मुसीबतें देखी, बहुत कुछ देखा। एक दुआ की है बादशाह से, इस्तकामत रहे, डोले ना। बादशाह हुसैन की जितनी भी नौकरी सांसें हैं वो देनी है। मौला हुसैन से आज ये 5 मुहर्रम दुआए ज़हरा में दुआ कर रहा हूं, बादशाह हुसैन जितनी देर जिंदगी देनी है वो तो आपने देनी है। अगर कोई अजर मेरा महफूज है ना क़यामत वाले दिन, मैंने इतनी तकरीरें आपकी मां के हक में की हैं, एक जुमला मुझे कहने की इजाजत देना। इन मौलवियों ने बच्चों के जहन पागल किए हैं कि क़यामत वाले दिन तख्त होगा और तख्त पे अल्लाह बैठेगा। मजमा बोले ना बोले फख्र बोलेगा, क़यामत वाले दिन तख्त होगा और तख्त पे अल्लाह बैठेगा। एक जुमले की मुझे इजाजत देना, जब क़यामत वाला मैदान हो तो मैं इन मौलवियों का गिरेबान पकड़ के इनसे कहूं कि अब जो तख्त पे बैठा है ना इसे अल्लाह का कोरोना का इलाज आ गया है, बुग़्ज़ अली का नहीं आया। कोई ऐसी वैक्सीन इजाद नहीं हो जो दिलों से बुग़्ज़ अली निकाल दे। क़यामत का मैदान होगा जी, नफ्सो नफ्सी का, इतनी गर्मी होगी, इतनी गर्मी हो गई, डूब के मर जाओ, गर्मी होती सूरज से, सूरज होगा तो गर्मी होगी। क़यामत का खुदा कहता मैं हर चीज को तबाह कर दूंगा, तो हर चीज फना हो जाएगी तो सूरज कहाँ होगा। तो ये हमारे बदनों में पसीना आता, क्यों पसीना आता कि आसमान पे सूरज है, सूरज की शुआएं आती हैं, शुआओं की तपश की वजह से बदन को पसीना आता जी। बड़ी गर्मी होगी, पसीने से बंदे शराबूर हो गए, तो सूरज होगा। तो अगर वो फना नहीं हुआ तो उसके लिए बका क्यों। अब मैं जुमला अपना नहीं पढ़ने लगा, जुमला अपने मौला का पढ़ने लगा, और यूं सीनों में ठंडक महसूस होगी, घर तक जाते हुए ठंडक महसूस करोगे। एक बंदे ने मेरे इमाम से आके कहा, मौला हमने सुना है क़यामत वाले दिन बदनों को पसीना आएगा, तो मौला जब सूरज ही नहीं होगा तो फिर पसीना कैसा। इमाम फरमाते तुझे और हैरान करूं, सिर्फ पसीना नहीं आएगा, कुछ ठंडक भी महसूस करोगे। मौला ठंडक कैसे महसूस करेंगे। मौला तुम क्या समझते हो ये निजाम शमसी वाला सूरज है जिसकी वजह से बदनों को पसीना आएगा। उसने कहा फिर मौला कौन सा सूरज, सर थाली के ना करो, फरमाते हाज़ा नूर बि विलायत अमीरुल मोमिनीन यतलहु अला जबीन अली इब्न अबी तालिब, ये मेरे दादे अली की विलायत का नूर है जो क़यामत के मैदान अली की पेशानी से ऐसे निकलेगा। मोमिन
سنا نا سوا نیزے پہ. اب سوا نیزے کا قد ناپ اور طریق سے علی کے بدن کا قد. علی کی ولایت کا نور جو علی کی پیشانی سے ایسے نکلے گا، مومن ٹھنڈک میں آ جائے گا، منکر جل کے راکھ ہو جائے گا. علی کے دشمن کا مقدر بھی عجیب ہے، یہاں بھی جلنا، یہاں فضائل علی سے چلو، وہاں حقیقت علی سے چلو. علی ولی اللہ پہ پکے رہنا. علی معظم کا نام ہے. یہیں سے گفتگو کو لے کے آگے بڑھیں گے. آج ہوگی 5 محرم. منبر تقاضا کرتا ہے کہ 5 محرم کو اس کے بچوں کی شہادت پڑھی جائے جس کی نسل کربلا میں ختم ہے. میں شہادت پڑھوں گا، اگر آسانی کے ساتھ ہو سکے تو یہ لائٹیں اگر آپ بند کر سکے، ایک لائٹ چلتی رہنے دیں، باقی لائٹیں، کیونکہ شہادت پڑھوں گا آج. یہ روشنیاں بجھائی کیوں جاتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہماری طرف سے احترام کی نشانی ہے. پرسہ لینے وہ آ رہی ہے جس کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا. کل میں نے پڑھی تھی علی کی ایک بیٹی کے دکھ، آج مجھ سے سننا علی کی دوسری بیٹی کے دکھ. نام زینب. آج کے مصاحبے میں منت کروں گا امام حسین کا ذاکر ہونے کی حیثیت سے. ویسے تو ہر عزادار روئے گا، آج سید زیادہ رونا. جتنے اولاد زہرا بیٹھے ہو نا، آج تم زیادہ رونا. مجھ سے پوچھو کہ آج ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم زیادہ روئیں؟ پوری دنیا میں جا کے دیکھ لو، جس سید سے جا کے پوچھو تو کس کی اولاد ہے. کوئی کہتا میں سجاد کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا میں جعفری ہوں، کوئی کہتا ہے میں قاسمی ہوں، کوئی کہتا ہے میں رضوی ہوں. پوری دنیا میں کوئی نہیں کہتا میں زینبی ہوں، میں زینب کا بیٹا ہوں. آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ زینب نے کربلا میں 2 بیٹے دیے ہیں. نسل قتل کروائی ہے علی کی بیٹی، نسل دی ہے. صرف 2 بیٹے نہیں دیے، نسل قتل کروا کے. سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا. مدینے سے چلی عبداللہ کی حویلی میں رو کہتی عبداللہ 40 دروازوں کو تالے لگ گئے. عبداللہ حسین وطن چھوڑ آئے. جناب عبداللہ بستر بیماری سے تڑپ کے اٹھے، رو کے کہتی علی کی بیٹی تو آج پوچھنے آئی ہے جب میری بارات تیرے گھر گئی تھی. امیر المومنین میرا ہاتھ پکڑا گھر کے کونے میں جا کے کہا جعفر تیار کا بیٹا میرے جگر کا ٹکڑا آج تیرے گھر جا رہا ہے. یہ علی کی بیٹی بھی ہے، فاطمہ کی بیٹی بھی ہے. عبداللہ بہتر کھانا دے نہ دے، خوراک دے نہ دے، بہتر لباس دے نہ دے، میری زینب فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ گزارا کر لے گی. لیکن عبداللہ ایک وعدہ کر، جب حسین وطن چھوڑے میری زینب کو روکنا نہ. دین محمد کو زینب کی خطبے کی ضرورت ہے. میں نے تو اسی دن وعدہ کر لیا تھا. بی بی رو کے کہتی ہے عبداللہ پھر اجازت دے. جناب عبداللہ دے کے کہتے ہیں کہ میری شام میں جگیر، میری یمن میں جگیر، میری مصر میں جگیر. مجھے بتا تو جعفر تیار کی بہو ہے، مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے، بھائیوں کے ساتھ ہے، آباد گھر سے جا رہی ہے. جتنے اونٹ چاہیے میں سامان کے لاتے، جتنے غلام چاہیے میں ساتھ بھیجوں، جتنی کلیزیں چاہیے میں ساتھ بھیجوں. جو بی بی کو رونے کے لیے آئے، بی بی رو کے کہتی عبداللہ جعفر تیار کا بیٹا اللہ تیری جگیریں تجھے مبارک کرے. مجھے نہ جگیریں چاہیے، نہ مجھے اونٹوں کا سامان چاہیے، نہ مجھے غلام اور کلیزیں چاہیے. فرمایا اتنے بڑے گھر سے خالی جائے گی. رو کے کہتی عبداللہ گواہ رہنا تیرے بڑے گھر سے ایک چادر لے کے جا رہی ہوں، دعا کرنا زینب کی یہ چادر بچ جائے. جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کی آواز ہے، علی کی بیٹی ایسے نہ جا. مورخ تاریخ لکھے گا، یہ نہ لکھے گا علی کی بیٹی ایسے اپنے گھر سے. پیغام بھیج بھائیوں کو، تمہیں ہاشمی لینے کے لیے ہاشمیوں کے نرگے میں جاتا کہ مورخ لکھے جب علی کی بیٹی اپنے گھر سے گئی تھی تو کس شان سے گئی. عبداللہ کا پیغام محلہ بنی ہاشم میں حویلی زہرا میں پہنچا. 18 بنی ہاشم حسین کے ساتھ ایسے جیسے تاروں کے درمیان چاند چلتا ہے، ایسے حسین چلتا چلتا زینب کے دروازے پہ آیا.
आगे का अब्दुल्ला तेरा पैगाम पहुंचा था कि आज ज़ैनब को बनी हाशिम लेने आए। देख अब्दुल्ला मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ अब्बास आया है, मेरे साथ अकबर आया है, मेरे साथ कासम आया है। देख हम सारे बनी हाशिम इसे लेने के लिए आए हैं। जनाब अब्दुल्ला बिस्तर बीमारी से अपने हथेलियों के जोर के साथ उठ के कहने लगा मौला मुझे माफ कर देना, मैंने तुम सबको सहमत दी है, लेकिन मैं सिर्फ लिखवाना चाहता था अली की बेटी आबाद घरों से ऐसे जाए कि मौरख लिखे जब ज़ैनब ने वतन छोड़ा तो कैसे छोड़ा था। अब जो बंदा आया रोने है वो हाथ सीने पे जरूर मारेगा। अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार कहते 18 के 18 लेने के लिए आए हो, लेकिन एक बात मुझे बताओ आज वो लेके जाए जिसने छोड़ने के लिए आया है। इतना कहना था, हुसैन ने अपने सर से अमामा उतारा, आवाज आई अब्बास बाहर आजा, अकबर बाहर आजा, कासिम महाराजा एक एक बाहर जाता रहा। अब्दुल्ला रो के कहता रहा फिर कौन लेके जाएगा। हुसैन की आवाज आई सच्चा पृथ्वी को साथ लेके आ, हमने करबला रहना, तूने शाह। हौसला 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 सजाद सैयद गैर सैयद अली की बेटी आबाद घर से निकली, मक्का के रास्ते में थे, काफिला दूर पहुंच गया था, या पीछे से घोड़ा सवार उसके घोड़े के सुम्मों के नीचे से गर्द उठ रही और आवाज क्या आ रही है, कोई हुसैन को रोके, कोई आका हुसैन को रोके। ये अब्बास के कान में आवाज गई। अब्बास ने घोड़े को रोका, सरपट घोड़ा पीछे की तरफ दौड़ाया कि कौन है। जब अब्बास के वापस दौड़े हुए, अब्बास के चेहरे पे जर्द, मौत की जर्दी। हुसैन का अब्बास क्या हुआ। मौला सरकार अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का नाम हुसैन ने सुना। कासिम कौन, अब्दुल्ला। अली की बेटी की अमारी में खबर पहुंच गई अब्दुल्ला। बीबी कहती है मफिजा अब्बास को बुला। अब्बास ने बोला बीबी के सामने, अब्बास कौन है। बीबी भैया अब्दुल्ला आए हैं। क्यों। कहते मैं हुसैन से मिलना। कहते हुसैन के बाद में लेके जाओ, पहले मेरी अम्मा लेके जाओ। अल्लाह तुम्हारी बहनों के घर बात रखे। अब्दुल्ला का घोड़ा ज़ैनब के मामल के करीब आया, रो के कहती अब्दुल्ला अगर तो रोकने आया है तो मैं अली की बेटी होते कह रही हूँ, तो मेरा शरई हाकम है, मुझे वापस तो ले जाएगा। इधर हुसैन का घोड़ा जाएगा, इधर मेरा जनाजा उठेगा। अब्दुल्ला रो कहता ना अली की बेटी, मैं मकसद हुसैन से रोकूं, रोकने नहीं आया। अब्दुल्ला क्यों आया। बीबी हुसैन जा रहे सफर में। जब शरीफ सफरों में जाए उनका सदका देते हैं। बीबी रो के कहती है अब्दुल्ला तो इतना अमीर है, तुम मेरे हुसैन का सदका दे। तेरे पास कौन सी ऐसी दौलत है जो हुसैन का सदका हो जाएगी। अब अल्लाह जाने कौन बंदा है जो मातम नहीं करेगा। अब्दुल्ला ने अपने घोड़े से दोनों बच्चे उतारे, रोक के तो मेरे घर में इनसे कीमती कुछ नहीं है। अगर हुसैन पे मुसीबत आए, एक अपनी तरफ से सदका कर देना, एक मेरी तरफ से सदका। घोड़े में बैठे थे हुसैन, सदके अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार। आज 1400 साल के बाद ये नौकर सलाम कर रहे जाफर तैयार के बेटे, तेरी गैरत को, तेरी वफा को सलाम। मैं जुमला पढ़ूं कैसे सुन करके। हुसैन घोड़े पे, अब्दुल्ला दोनों बेटों को लेकर घोड़े के चक्कर में। मां हमारी पे देख रही है। अब्दुल्ला की आवाज आई अब जाओ मैं मुतमिन हूं। और मोहम्मद घोड़ों पे सवार। जब कभी ज़ैनब के महमल के करीब आते, अम्मा, बीबी हमारी का पर्दा उठा के कभी फिजा ने कह दे, बेसाख्ता हाय कह दोगे, मातम ना कर सको हाय तो कह दोगे। जब कौन या मोहम्मद कहते ना अम्मा, बीबी हमारी का पर्दा उठा के कहती मैं सैयदजादी हूं, तुम सदका हो। मुझे मां कहे, अकबर कहे, मुझे मां कहे, कासिम कहे, सारे रस्ते। और ना मोहम्मद को किसने संभाला। गाजी की बहन
करबला आ गए बस का करीब से, वरना पूरा सफर पढ़ा जाए 35 से 40 मिनट का मजमून है औला मोहम्मद की शहादत। मेरा वक्त तमाम हो गया, मैं बिल्कुल करीब आने लगा हूं। 10 मुहर्रम हुसैन एक कुर्बानी लेते, मक्तल में छोड़ते, टीले पे खड़े होते। हालत क्या थी? कुर्बानियां तैयार होती थी आलिया के खैमे में। माँ कुर्बानी आलिया के खैमे में लेके जाते, हुसैन आलिया के खैमे से लेते, हुसैन मक्तल में भेजते, हुसैन टीले पे आ जाते, फिजा दरवाजे पे आ जाती, आलिया मुसल्ले पे आ जाती। इधर मक्तल से जवान गिरता, हुसैन टीले से गिरते, फिजा दरवाजे से गिरते, ज़ैनब मुसल्ले से गिरते। मैं कहता हूं मैं अगर इस बात को फैलाऊं तो मैं 5 मिनट बंद करूं तो एक जुमला पढ़ने लगाऊं, और जो इशारा बंदा समझेगा ना वो बंदा मौला नियाज कबूल करे, मौला बेटों की जिंदगी करे, महमूद गिलानी सब जुमला समझिएगा। जो बंदा मातम करना चाहेगा, जब औनो मोहम्मद हुसैन के सामने आते तो पंजों पे खड़े हो जाते। कहीं हुसैन हमें बच्चा समझ के तो नहीं नजरअंदाज कर रहा। जब हुसैन के सामने आते पंजों पे खड़े हो जाते। जब मां के सामने जाते, मां खेमे का पर्दा गिरा कहती अभी तक जिंदा हो। मां मिल नहीं रही थी, हुसैन भेज नहीं रहे थे। आखिर गए अब्बास के पास, रुक के कहते हैं मौला गाजी हमारा भी कोई वारस है कि नहीं? मौला गाजी हमें भांजे ना समझ, हम तेरे शागिर्द तो है ना। मौला तूने हमें लड़ना सिखाया है। मौला अब्बास की आवाज आई, हाँ मोहम्मद अम्मा के खेमे में जा रहे, अम्मा मिल नहीं रही, हुसैन इजाजत नहीं दे रहे। मौला अब्बास ने दोनों के हाथ पकड़े, आलिया के कहने के बाद रो के कहते हैं हर माँ ने इजाजत मांगी है तुझसे, इनकी इजाजत कौन मांगेगा? अब्बास कौन है? शहजादी औला मोहम्मद है। बीबी कहती हुजरे के अंदर ले गया, खेमे के अंदर शहजादे गए, माँ मुसल्ले पे थी, सामने ले। बीबी कहती सिफारिश मैं करती हूँ, मक्तल में तुझे भेज दूंगी। औनो मोहम्मद छोटे छोटे हाथ बढ़ाए, औनो मोहम्मद ने हाथ उठाओ, माँ के सर पे रखो, अब दुआ करो, मैं जुमला पढ़ लो, तुम बर्दाश्त कर लो। औनो मोहम्मद के हाथ पकड़ के माँ ने सर पे रखे, 3 वादे करो मेरे साथ। औनो मोहम्मद ने कहा अम्मा बता कौन सा वादा है? रोकी कहती पहला वादा है जंग ऐसे लड़ना दुनिया को पता चल जाए कि तुम जाफर तैयार के पोते हो, अली के नवासे हो। कहने लगे अम्मा ऐसे जंग करेंगे कि दुनिया मिसाल कायम रखेगी। फरमाया मेरा दूसरा वादा याद रखना, अगर फुरात में नजर पड़ जाए पानी को न देखना, हुसैन की सकीना प्यासी है, ऐसे ना हो कि तुम फुरात के किनारे लड़ते लड़ते चले जाओ। कहती अम्मा वादा फुरात पुकारती रहेगी, हम दरिया को देखेंगे भी नहीं। तीसरा वादा सुना तो करबला के सवार बैठे हो, रो कहती आखिरी वादा तुम्हारे लाशें करबला में न गिरे, करबला अकबर की जगीर है। लाशें तुम्हारे करबला में नहीं गिरने चाहिए। और के कदमों में हाथ रखेगा, अम्मा वादा इतनी दूर गिरूंगा, लेकिन अम्मा तीसरा वादा तूने किया है, एक मिन्नत मेरी भी है। बीवी रो के कहती है बताओ। और कहता जितना दूर जा सकूंगा मैं जाऊंगा, हुसैन को मेरी लाश पे आने कहती ये मेरा वादा, मैं हुसैन को तेरी लाश पे नहीं आने दूंगी। यही तो वजह है कि शिमर ने खुद शाम गरीबा सज्जाद से पूछा था, सज्जाद इन बच्चों की मां मर गई है, हर बच्चे की लाश में कोई माल होने आई है, इन बच्चों की लाश में रोने कोई नहीं। हुसैन को
मैं हुसैन की माँ, मैं अकबर की माँ। सादात और गैर सादात, बस हमला नहीं पढ़ सकता, करीब से शहादत शुरू की है। 2 जुमले और सुनना। घोड़े आए आलिया के खैमे के बाहर, अब्बास से छोटे छोटे इमाम बंद, जाफर तैयार के पोते, अली के नवासे। गाजी ने चूम के ज़ैनब के लाल घोड़े की ज़ीन पे बिठा। मैं जुमला तब्दील करता हूँ, रहले ज़ीन पे इसमत के गुलाम आए। गाजी ने शहजादों के हाथ चूमे, औन की आवाज आई है, गाजी मौला उस्ताद है तू हमारा, टीले पे खड़ा होके भांजों की जंग देखना। अब्बास टीले पे खड़ा हो गया। अब्बास ने दस्तूर बताया, औन दाएं से हमला करना, मोहम्मद तेरी नजर कल्बे लश्कर पे हो, और ऊपर से हमला करके फौजों को घेर के फुरात का घाट खाली करना। मोहम्मद जब तक औन फुरात के किनारे न पहुंच जाए, तूने मेरे हुक्म का इंतजार करना है। मैं इशारा करूं तो तूने हमला करना है। बिस्मिल्लाह पढ़ के दोनों शहजादों के यूं हाथ चूम के अब्बास अगर जाओ मौला के हवाले। इधर से अब्बास ने शहजादे मैदान में भेजे। हुसैन टीले पे जमीन पे बैठ कर, गाजी मैंने हर एक की जंग देखी है, मैं ज़ैनब के लाल गिरते नहीं देख सकता। अब्बास तूने मुझे बताते रहना है। अब्बास टीले पे खड़े हो गए, हुसैन टीले के नीचे, फिजा दरवाजे पे, ज़ैनब मुसल्ले पे। औन ने ऐसा हमला किया है, किताबें उठा के देखो, मैं औन मौला का हमला पढ़ने लगा, शहजादा औन का हमला पढ़ने लगा। उमर इब्ने साद मलऊन इस फौज का सिपा सलार था, इसका खैमा फौजों के दरमियान था। औन हमला करता करता फौजों को चीरता हुआ इसके खैमे के अंदर आ गया है। ये खैमे से भागा, इसने ज़ैनब के बेटे को देखा। औन ने इसके खैमे के अंदर नेजा काट के कहा, और तुमने हमें गरीब समझा, तुमने हमारे बदे एहराम जुड़वाए, तुमने हमें गरीब समझा है। जब औन ने इस मलऊन के खैमे के अंदर नेजा गाड़ा, अब्बास के चेहरे पे जलालत मरहबा अली के नवासो, ऐसा होता है अली का लहू, ये होती है अली की शुजाअत। जब फौजों में भगदड़ मच गई, उमर इब्ने साद मलऊन दे के कहता है, हुसैन का बच्चा मेरे खैमे में आ गया है। लश्करों ने पहरा कैसे तोड़ दिया है। एक ने आवाज दे के कहा, इसकी जंग आम जंग नहीं है, ये लड़ता है तो ऐसे लगता है जाफर तैयार लड़ रहा है, ये वार करता है ऐसा लगता है हैदर करार खैबर में लड़ रहा है। उसने कहा, फिर तुम्हें किसने कहा है कि इनको तलवार से मारते हैं, इनको धोखे से मारते हैं। औन लड़ रहा था, ये एक कमीने ने कहा, तू लड़ रहा है, तेरी माँ के खैमे को आग लग गई है। औन ने पीछे मुड़ के देखा, एक मलऊन ने औन के पूंछ पे नेजा मारा। औन के पैर कांपे थे, हर एक ने गिरने से पहले कहा, मौला में गिर गया। औन की आवाज आई, अम्मा में गिर गया। आखिरी जुमला, आखिरी 1 मिनट। औन की आवाज आई, अम्मा में गिर गया। इधर से औन गिरा, मोहम्मद के पांव रकाबों में फंस गए। हर शहादत में, जहां शहादत पढ़ूं, साल में 1 बार पढ़ते हैं ये शहादतें, जुमला नहीं दोहराता। गिरिया उतना बुलंद ना हुआ तो मैं जुमला पढ़ूं, ये माफ कर देना। ये ताबूत नहीं, जनाजा है हुसैन का। ये मेरे जनाजे की तरफ हाथ है, मक्तल कहती है। औन जिंदा था, या लाश में घोड़े दौड़ने शुरू हो गए। मोहम्मद की आवाज आई, ओ मेरा भैया कमाल हो गया। अब्बास ने तलवार निकाली, ज़ैनब की आवाज आई, अब्बास रुक जा, ये कासम से प्यारी नहीं। अब्बास की आवाज आई, ओ मेरा लाल जिंदा। और जिंदा पे घोड़े दौड़ गए। हुसैन दौड़े मक्तल की तरफ। हुसैन लाश उठाने के लिए दौड़ते नहीं थे, और की लाश उठाने के लिए हुसैन दौड़े। बीबी जान का मफिजा, हुसैन बुला। बीबी जान की आवाज, मौला आका दादी कह रही है खेमे में पहले आए। हुसैन खेमे के बाहर पहुंचे, हालत क्या मामा उजड़ा हुआ है। ज़ैनब के खेमे के बाहर जाकर ज़ैनब उजड़ गए। ज़ैनब मेरा औन मारा गया, ज़ैनब मेरा मोहम्मद गिर गया। अपनी चादर से भाई के आंसू साफ किए, रोक गदी बहन की गैरत का वास्ता, लाश उठाने ना जाना, मेरे आगे बैठ, मैं तेरा चेहरा देखो। तू चंद
खिदमत में हुसैन